Yeah, you have done a BTech in biotechnology. Yes, sir. When you have passed biotechnology? Sir, in 2019. 2019. 19. Yes, Oh, sir. that's good. So, and your option paper is Liver and social. liver and social welfare. So, why you have shifted from biotechnology to liver and social welfare? Sir, actually the biotechnology optional is not available in BPSC. And the second thing is that, sir, I was the president of BIT Welfare Society, in which I was leading a team of near about 130 workers of the BIT Mestra. Sir, so I was always agile to know about the labor laws and everything. And the second thing is that, sir, I also want to do a course on human resource management and further to know about the human rights and all. So that's why I have chosen the labor and social welfare as an optional. Okay. What is genetically modified food? Transgenic crops, I do mean. Sir, genetically modified means manipulation of genetic. Sir, in this kind of products, genetic modification basically, that has been done to provide a more nutritious enhancement. And What is the process of that technology? sir, basically, we have a DNA sequence in our body, so we just cut one particular segment of the DNA and then insert like whatever we want to provide the characteristics into the organism. We paste the that kind of DNA into the genetic body, sir. So, will you give any examples? So like we have a BT cotton, sir, Okay. and BT brinjal is also there, and fortified foods. Okay. There are various fortified foods, sir. Hmm. And we have genetically modified kettles also. And recently in China, sir, they have also made a genetically modified baby, but that was not legally correct. Okay. Yeah. BT brinjal. BT brinjal, yes. BT brinjal Yes. and BT cotton. Yes. So there was a controversy about BT brinjal. Yes, sir. What are that issues? Sir, I think that was I'm not aware about the whole The process. government has but- not finally approved the Yes, sir. BT ban. I think that was due to harmful effects, the nutritional, the products, the nutritional requirements in it is not suitable for humans. So that's why the government has banned. What is a design baby? Sorry, sir. Design baby. Design baby. Sorry, sir. I'm not getting it right now. Yeah. You may guess. Design baby, sir. I think some genetically modifications has been done into the baby. Yeah. That may be a design baby. Yes, right. Your hobby? So my hobbies is traveling, bike touring, sir, and powerlifting, gymnastics. Okay. So, give you who is your ideal travelers? Ideal travelers, Yes. sir. I have no as such ideal travelers, but I have learned some traits from my father. He used to travel a lot, so I am just following his characteristics right now. Kumar Sanjeet. Snehjit. Snehjit, sorry. So you have done your BTech, sir. BTech and biotechnology. Yes, sir. What is the basic difference between biotechnology and microbiology? Okay, sir. Sir, biotechnology is basically like it's a kind of the definition itself, sir, like biology plus technology. Okay. Means we use the terms from the biology to enhance to generate some technology. Like after doing some kind of changes in the living organism, we produce beneficial products for us, like for human beings. In microbiology, it is basically we study about the various organisms into it, like bacteria, viruses, and fungi, algae, and its uses in our environment. Nowadays we are just using biologically modified foods. Yes, Okay. sir. Yes. So is it a good practice? Sir, actually, in biologically modified foods, that it has an advantage and a disadvantage also, sir. Advantages include it may increase the nutritional requirement in our body, Okay. and disadvantages include like we don't know the various harmful effects of it. It may make us ill, and it may have some harmful effects on our body too. And the second thing is that
don't you think that GM crops or GM foods creates monopoly in the market? Sir, genetically modified crops, if availably, if it is if it is fine, and if the patent requirements are not there, like Okay. the various companies do the patents, and then they lead as a monopoly. They do not provide the formula to the local farmers, and the competition not goes fair in the market. Okay. What are the benefits of genetically modified foods nowadays? What we are eating in the market? So first thing is that nutritional requirement may enhance in various food. Fortification of food, sir, as we are after using the genetically modified products, we may enhance the nutritional requirements in our body and in the food too. And the second thing is that we can use it as we can use it in drought prone areas. Like after doing the genetically modification, we can make such kind of products also that that needs a less water amount, so we can use it in a drought prone areas, and we can also use such products that are that generally grows in the mountainous region. Okay. There is some varieties of rice, Yes, sir. paddy, Yes, sir. okay, which uses very less water. Yes. Can you name? It is genetically modified. Sir, if you permit me, I will guess. Currently, I am not able to recall. Yes, you can guess. Sir, yellow rice in Philippines, that is, I think that requires a less amount of water. Yellow rice in Philippines. In India, we are using In- it. Yellow rice. No, Yes, no? sir. And in Yellow. India, sir, yes, sir. In India, sir, currently I am not able to recall. Okay. And you love traveling. Yes, sir, I love travel. Within 10 minutes, you are going to ready for the Leh or Ladakh. Yes, sir. What will you pack in your bag? Sir, as Leh Ladakh is a area in temperate zone, first of all, warm clothes I will keep. Warm clothes, sir. And the second thing is, I have a problem of kind of asthma, so I'll keep the medical products that are required for me. Okay. And sir, Within 10 minutes, your friend has told that I am waiting for you. I am Sir, waiting for you. so the first is the clothes, woolen clothes, sir. And the second thing is medical products that will be required in that kind of weather conditions. And the third thing is sir, I think these are the two things that will I'll get the You priority. don't think money is important? And you can get Obviously, sir. everything there? No, sir. Actually, I'm sorry, sir. Money is also Money the or priority plastic for me. money, anything. Plastic Oil. money, And yes. Plastic money is good. That is the first. That is the first thing. Within 10 minutes it is possible. Yes, sir. And you can just avail everything there. Yes, sir. Okay? Yeah. Okay. You like traveling or modeling? I like traveling, sir. But you look like a model. Thank you, sir. Thank you so much. What is modeling? Sir, modeling is kind of a profession in which one can show his ability through his body. Why don't you try there? You can do better there. You will be a Sir, actually, sir, profession of modeling is kind of a very challenging, and we as a it means the post of DSP is not challenging. and not challenging in that field, sir. I'm not talking about in that field. We are from a there middle are class. only challenging. Exactly, but sir. there is always challenges and danger also. Exactly, sir. Sir, actually, I belong to a middle class profession, so we have a very kind of a responsibility that one has to Many achieve. middle class people, Udit Narayan, we have already discussed about Udit Narayan. Yes, sir. He also belonged to very, very simple family, but now he is the role model of Yes, sir. the Yes, sir. Definitely, forthcoming sir. singers in India. Definitely, sir. And he earned name and fame globally. Definitely. Why should you not do there? Sir, my first priority was to get into civil services because I have some responsibilities. And the profession of modeling is requires time and some kind of money also, sir. So that to maintain the body and to live in metropolitan cities.
So that's why. What is recently Gyan Vapi is in news. Yes, sir. What is Gyan Vapi? Sir, Gyan Vapi is a mosque in Banaras. And the issue is going on, the Hindu sides are claiming that it was a mosque, it was a temple, but Aurangzeb demolished the temple and constructed a Gyan Vapi mosque. What is the क्या आधार है उसको कि वो मस्जिद है? Sir, मस्जिद What is the basic object there? सर आर्किटेक्चरल क्लेम है सर। ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने उसको तोड़वाकर वहाँ पर मस्जिद बनवाई थी और हिंदू ने फिर हम मतलब हिंदू मेजोरिटी ने क्लेम किया है सर कि वो एक मंदिर था। उसमें सर मतलब फिर बनारस के सिविल कोर्ट ने वहाँ पे जो परमिट किया था वहाँ पे वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करने के लिए और जो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए कि मंदिर थी या मस्जिद थी। तो हाल ही में सर कुछ क्लेम्स किए गए हैं कि वहाँ पे एक शिवलिंग के आकार का कुछ आर्किटेक्चरल कुछ मिला हुआ है वहाँ पे सर, जिसके खिलाफ अब जिसमें रिपोर्ट अभी बना कर दी गई है सिविल कोर्ट में सर। तो एक बात बताइए कि इतना दिन से जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी था वो शिवलिंग वहाँ था तो हटाया नहीं वहाँ से? सर वो एक वो वजू खाना कहते हैं सर उसको। वजू खाना सर एक पानी से भरा हुआ है और वो सर शिवलिंग अंदर है सर शायद। ये लगता नहीं कि दिस इज नथिंग बट ओनली हाउ टू पोलराइज द वोटर्स इन इंडिया एंड क्रिएट इंसर्जेंसी इन आवर कंट्री and divert people from all the burning issues which are haunting the people, which are killing the people, which are massacring the people financially, socially and others. सर इसके लिए हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे पास 1991 में आया था, जिसमें कहा गया था सर कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी मोनूमेंट जिस तरह से हैं वो वैसे ही कायम रहेंगे। लेकिन सर कुछ बिलीफ्स ऐसे रखी गई, जैसे बाबरी मस्जिद को हमने एक्सेप्शन रखा था तो उससे पहले चल रहा था। जी 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 सर। तो फिर इसमें सर जो क्लेम किया जा रहा है, हालांकि सर जब हम आज़ाद हुए तो हम बिल्कुल हमने आपने कहा कि 1947 के बाद जो भी प्लेसेस है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, उनमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, ऐसा उस एक्ट में मेंशन किया है। जी सर। फिर भी ज्ञान वापी मस्जिद के साथ छेड़खानी हो रही है। बाबरी मस्जिद को मैं मान लेता हूँ एक एक्सेप्शन है, फिर इनके साथ क्यों हो रही है, क्या आधार है? सर अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि उसमें सर जो धार्मिक मतलब सर ऐसे कुछ मोनूमेंट्स हैं जिसमें अगर धर्म से रिलेटेड हम चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे मतलब किसी को रोक नहीं सकते सर कि पूजा हो रहा है या फिर कुछ भी मस्जिद है वहाँ पे और कुछ अलग मोनूमेंट्स मिलते हैं तो हम किसी को रोक नहीं सकते सर वहाँ पे पूजा करने के लिए। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया सर। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से भी गाइडलाइंस है जी, बेंच का गाइडलाइंस है कि जो एक्ट बनी थी 1991 में जी, इस एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि अगर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट में है आफ्टर 1947, ठीक है, उसे जो है रिवोक कर दिया जाएगा, उसे जो है यूजलेस माना जाएगा, इस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। सेक्शन 5 में जो है बाबरी मस्जिद को इसे स्किप किया गया, बाहर रखा गया, इसलिए बाबरी मस्जिद तो समझ में आ रही है क्योंकि पहले का मैटर है। ज्ञान वापी तो ऐसा नहीं है, फिर भी कुछ तो ऐसा बेसिक चीज होगा जिसके आधार पर ये फिर से सर्वे हो रही है उस पर जाकर। क्या ये रिफॉर्म्स की बात एकदम रिसेंट डिस्प्यूट है या कुछ पहले से चल रहा है? सर रिसेंट नहीं कह सकते इसको सर, बहुत पहले से ही बीच बीच में कवायद की जाती है इसके लिए कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जी, ऐसा सुने। हाँ सर ये क्लेम मतलब किया जाता है सर कुछ जगहों से। चलिए आपकी क्या ओपिनियन है? आप 91 के कानून पे रहिए या जो भी सरकार ने सर क्या हमारे देश में, अंतिम सवाल मेरा जी, क्या अब जो भी स्थिति है आज़ादी के बाद की स्थिति उसी पे कायम रहना चाहिए या फिर सारे मामले को डिस्प्यूट पैदा करके और फिर से खुदाई किया जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? सर मेरा मानना यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए सर, तो हम एक मॉडर्न स्टेट बनाने की हमने बिलीफ लिए रखा था कि हम एक मॉडर्न स्टेट बनाएंगे और जो पहले से आ रही परंपरा है, जो माइथोलॉजी है, उसको हम उसमें हम अपना मतलब एक सेकुलर स्टेट हम बेसिकली बनाना चाहते थे सर। और हमारी एक सबसे बड़ी खूबी है सर कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बिलीव करते हैं सर। तो मुझे लगता है सर अब हम मॉडर्न सिस्टम पे कायम रहें और जो चीज़ें चल रही हैं सर, क्योंकि इसका अगर देखा जाए सर तो कोई रिजल्ट नहीं है सर, फिर आगे कई तरह के डिस्प्यूट्स हमारे सामने आएंगे और कब तक हम फिर इन्हीं चीज़ों में हो सकता है, मस्जिद हो सकता है सर। क्लेम्स का कभी वही कहना सर कि क्लेम्स तो फिर बढ़ते ही जाएंगे सर। तो एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए हम ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल है, आपने दाढ़ी और मूंछ रखी है? जी सर। बेहतरीन है सर, थैंक तो क्या ये
आपका अपना डिजाइन है या कहीं से कॉपी किया आपने? सर एक्चुअली मूंछों के पीछे सर एक राज है सर, जब मेरे बड़े पापा रखते थे, उनकी डेथ हो गई थी सर जब मैं 7 साल का था। अच्छा तो उन्होंने सर बहुत कुछ लेसन्स मुझे सिखाई थी जब मैं छोटा था। वो सर मतलब हाँ, मतलब मेरी मम्मी बताते हैं कि चलाना मतलब चलना मुझे उन्होंने सिखाया था। तो बस सर हाल फिलहाल में उनकी बरसी हुई थी सर, तो उन्हीं के याद में बड़ा है बस, ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा मतलब और कोई रीज़न नहीं है सर, बस इसी की वजह से उनकी याद में। ओके स्नेह जी, आपको मान लो आपको मैं एक गिलास ऑफ वाटर देता हूँ, जी तो उसके अंदर जो पानी है वो प्योरीफाइड है, आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आप बायोटेक के स्टूडेंट हैं। सर उसका TDS नापा जा सकता है सर, अगर मेरे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है तो। ये BOD और COD क्या होता है? सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सर बेसिकली जैसे कहीं भी पानी होता है सर, कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें अवेलेबल होती हैं, तो सर हमें उससे पता चलता है कि इम्प्योरिटीज़ कितनी है सर। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगा वहाँ के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का, उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी सर। तो अगर BOD ज़्यादा है मतलब इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है सर, ये बेसिकली कहा जाता है। COD क्या? सर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सर, इसको मैं अभी फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, एक बार मैं इसे कर जाकर देखूँगा। ओके, आप ये बताइए कि आजकल एनवायरनमेंट इज बर्निंग इशूज, जी बायोटेक का क्या रोल हो सकता है एनवायरनमेंट के कंसर्न में, उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या रीजनल लेवल? सर मैं 5 सेकंड का वक्त लेना चाहूँगा। अच्छा, ये कोविड समय से ये सर। हैंड वॉश की परंपरा बहुत बढ़ गई है, जी तो आप क्या समझते हैं कि ये हैंड वॉश अगर ज़्यादा की जाए जी तो बीमारी रिड्यूस होगी या फिर लोगों की इम्यूनिटी घटेगी? सर सैनिटेशन सर एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है सर, चूँकि हाथ साफ सफाई और खुद का सैनिटेशन रखें हम सर, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन दूसरी बात यह है सर, जैसे हम सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं वो उसमें सर इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, अच्छा, और सर अगर हम फ्रिक्वेंटली अगर यूज़ करते हैं, दिन में अगर लगातार यूज़ करते हैं सर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हार्म कर सकता है सर। हाँ, लेकिन उसमें भी सर अगर हम ओवर हाइजीन होना क्या सही मानते हैं कि ओवर हाइजीन होना सही चीज़ है? सर ओवर हाइजीन होना मतलब सर किस तरह क्या का? इसके जैसे कुछ research- इम्पैक्ट हैं? कुछ इम्पैक्ट इसका? काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक हो जाते हैं फूड्स को लेकर या फिर हैंड वॉश को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कहा जाता है, तो क्या ये इसका कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ता है? क्या हमारे अंदर का जो डिफेंस सिस्टम एडेप्टेबिलिटी है को लेकर क्या कुछ उसको प्रॉब्लम वो आती है? हार्म करती है क्या? जैसे किसी बीमारियों से लड़ने के आप लिए यूँ समझ लो, मान लो कि आप 24 आवर ठीक है AC रूम में रहते हैं, जी तो क्या बाहर निकलते हैं अगर आप जहाँ पे AC अवेलेबल नहीं है, जी। तो क्या आपकी बॉडी के ऊपर कुछ इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर? सर मेरा मानना यह है सर कि हम जिस तरह से रहते हैं हमारी बॉडी उस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेती है। अगर हम AC रूम में रह रहे हैं सर, तो हमारी बॉडी फिर उसी तरह कंडीशन को अडॉप्ट कर लेगी, और सनलाइट वगैरह में थोड़ा हमें इसकी वजह से इशू भी हैंडल करना पड़ सकता है। तो सर पॉसिबिलिटीज हमारी जी। तबीयत खराब होने की ज़्यादा है। हाँ सर, उस अगर कंडीशन में नॉन AC प्लस पे जाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टीज होंगी सर, बाद में बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, लेकिन स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा सर। नहीं, मैंने साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा है कि जी। थोड़ी सी गंदगी जरूरी है। सर इसको मैं करंटली रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके स्नेह जी, म्यूटेशन क्या होता है? सर म्यूटेशन बेसिकली हमारे पास जो DNA सीक्वेंस होती है सर, DNA सीक्वेंस में चेंजेस किए जाते हैं कहीं ना कहीं, उनको सर DNA म्यूटेशन कहते हैं। किस तरह के चले जाते हैं? सर म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकते हैं सर और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो सर अगर इसमें देखें तो म्यूटेशन में सर अगर हम कोई सीक्वेंस में मतलब जैसे सर अपने बॉडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस DNA सीक्वेंस को हम कट करके वहाँ पे कुछ जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फॉलो कराना चाहते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस DNA सीक्वेंस को वहाँ पेस्ट कर दें, तो वो एक DNA सीक्वेंस, वो एक म्यूटेशन कहलाएगा सर। आपने ऑप्शन के रूप में LSW में रहता है। जी सर। ग्रेचुइटी क्या होता है बता? सर ग्रेचुइटी एक गिफ्ट है सर। जैसे किसी भी कंपनी में मैं अगर 5 साल कार्य कर रहा हूँ या 5 साल से ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ, और जब मैं वहाँ से अपनी नौकरी को त्यागूंगा या जब मैं रिटायर होऊंगा, तो एक ग्रेचुइटी अमाउंट हमें मिलती है सर, उसी को कहते हैं ग्रेचुइटी सर। तो क्या ये मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेचुइटी प्रोवाइड करना है, ये फिर कंपल्सन है? सर 5 साल अगर कहीं काम करते हैं तो वो फिर कंपल्सन बन जाता है सर कंपनी को कि ग्रेचुइटी देना ही पड़ता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 Yes, जैसे भी आपने पढ़ा होगा, जी। इसमें फैक्ट्री को क्या कैसे डिफाइन किया गया है? सर फैक्ट्री को करंटली सर मैं एक्चुअली ऑप्शनल पे अभी काम नहीं किया हूँ सर।
ऑप्शनल पे थोड़ा सा काम मिनिमम वर्कर्स कितना चाहिए अगर एक फैक्ट्री का अगर ये किया जाए सर? सर उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है तो 20 चाहिए होते हैं सर, और अगर नहीं हो रहा है तो अगर हो रहा है सर तो 10 चाहिए होते हैं, नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो 20 चाहिए होते हैं। उसको हम सर फैक्ट्री का डेफिनेशन देते हैं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में कई रिफॉर्म्स भी किए हैं। जी सर। ठीक है, जी 2-3 रिफॉर्म्स बताइए जो मेजर रिफॉर्म्स किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। सर जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनते थे फैक्ट्रीज के लिए सर, पहले उसमें 300 वर्कर्स का था कि मिनिमम 300 वर्कर्स होने चाहिए, तो एक 100 वर्कर्स का था सर, जिसमें मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए जाते थे फैक्ट्री के लिए। अब वो सर बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। उसमें फिर सर सोशल सिक्योरिटी कोड में सर एक डेटाबेस बनाने की बात कही गई है। एक सोशल सिक्योरिटी में सर गिग वर्कर्स का भी डेफिनेशन हमने उसमें देखा है, और गिग वर्कर्स को भी हमने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए सर हर कंपनीज में सर 1-2% का जो उनका प्रॉफिट होता है वो उनके सोशल सिक्योरिटी पे गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी पे जाएगा। और सर इसमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी हमने प्रोविजंस देखे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स का डेफिनेशन इसमें दिया गया है, जिसमें कहा गया है सर कि कोई भी वर्कर्स दूसरे स्टेट में जाता है और 18,000 या उससे ज़्यादा की सैलरी पाता है, 18,000 तक अगर सैलरी पाता है तो उसको माइग्रेंट वर्कर्स का डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। चाइल्ड लेबर को लेकर भी कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, कुछ नए रिकमेंडेशंस आए हैं जी। जो काफ़ी मायने रखता है। जी। क्या 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 सर इस पे मैं करेंटली रिकॉल नहीं, ऑप्शनल पे भी सर एक्चुअली मैंने थोड़ा कार्य कम किया है। पावर लिफ्टिंग। यस सर। इंडिया में 2-3 ऐसे पावर लिफ्टर के नाम बताइए, मतलब जिन्होंने ओलंपिक के लेवल पर कुछ अच्छा काम किया। एक विमेंस हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जानते हैं? जिन्हें अभी दिल्ली में जी। कोई बड़ा पोस्ट दिया गया है वीसी या बिल्कुल। किसी चीज़ का। काफ़ी बड़े ओहदे पर हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। जी जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हाँ सर head बनाया गया है, करेंटली मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। और एक सर पावर लिफ्टर हैं गहलोत करके, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा सर मुझे एक्चुअली। उन्होंने सर ओलंपिया में कई बार मेडल जीते हैं। अच्छा, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम तो सुना जी होगा सर आपने? बिल्कुल। उसके बारे में क्या क्या जानते हैं? सर वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक बॉडी बिल्डर थे जो अभी अमेरिका में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, शिकागो में सर। सर उन्होंने सर तकरीबन शिकागो या फिर कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया सर, आई एम सॉरी। उसके बाद सर 19 वर्ष की आयु में सर वो सबसे यंग मिस्टर ओलंपिया बने थे कितने बार वो बन चुके हैं? सर। जहाँ तक मुझे याद है 7 बार बने हैं सर। अच्छा, जी। और कुछ उनके बारे में जानकारी? सर हॉलीवुड के एक्टर रह चुके हैं। किसी फिल्म का नाम बताइए। सर टर्मिनेटर में रह चुके हैं कितने सीरीज बन चुके हैं उसके? सर। 3 साल बने हैं जहाँ तक मुझे याद है सभी के नाम सेम है? सर। हम सर उसके बारे में भी बोलेंगे। ठीक है ओके, चलिए, बढ़िया। थैंक All the यू best. सर। थैंक यू सर।